Welcome you all again in your social science class. Myself Varsha. Student, in the previous video we have discussed about the event of July 1789, 14th July 1789. What was that event? How did the angry mob attack the Bastille Fort and demolish that, kill the commanders, make free the prisoners, all the 7 prisoners of the jail. Now, to understand the main reason of all these incidents, we'll have to discuss about the condition of the French society. Now, how was the French society organized? We'll have to discuss about it. In 1774, Louis XVI became the emperor of there, who belongs to a Bourbon family. बर्बन एम्पायर का राजा था, किंग लुइस 16 बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था. एंड ही हैज़ मैरिड टू द प्रिंसेस ऑफ मारिया एंटोनेट ऑफ ऑस्ट्रिया. Remember the name. King Louis XVI married to the Princess Maria Antoinette of Austria. At the time of his accession, he found the empty treasure. जब किंग लुइस 16 राजा बना और उसकी शादी हुई मैरिया एंटोनेट से, तो उस समय जब वो गद्दी पर बैठा तो उसको जो ट्रेजर था, जो खजाना था, वो बिल्कुल खाली मिला. आई विल एक्सप्लेन यू लेटर दैट व्हाट वाज द रीज़न ऑफ एम्प्टी ट्रेजर. इसका मैं एक अलग से वीडियो आपको सेंड करूँगी कि एम्प्टी ट्रेजर का रीज़न क्या था. बट राइट नाउ वील डिस्कस अबाउट द फ्रेंच सोसाइटी. One more thing I want to clear you, that now you have a doubt that I have mentioned everywhere 1769, 1774 and and our heading is about 18th century, the French society during the 18th century. आप सोच रहे होंगे ना मैम हर जगह 1769, 1744 की बात कर रही हैं, बट हमारी हेडिंग तो 18th century की है. Actually, because 1701, 1799 is known as 18th century. आप 17th को क्रॉस करके एंटर कर चुके हो 18th सेंचुरी में, ठीक है. इसीलिए हम बोलते हैं ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी. 1800 1899 की हम बात करते हैं. फ्रेंच सोसाइटी स्टूडेंट एक्चुअली इज अ फ्यूडल सोसाइटी. The society was mainly divided into 3 states. First state, second state and the third state. First state is known as clergy. They are the people who have the special power of church. As in India, the ancient period, the king had purohits. जैसे हमारे इंडिया में पुरोहित हुआ करते थे और इनका बड़ा ही एक राजगुरु आपने देखा होगा रामायण में या महाभारत में, है ना. बहुत सारे राजाओं के दरबार में जो उनके पुरोहित होते थे वो उनके एडवाइज़र होते थे और उनकी एक बड़ी रेपुटेटेड पोजीशन होती थी, ठीक है. इन द सेम मैनर द पीपल हु बिलोंग्स टू चर्च, they have the special power and they are known as clergy in France. Second state belongs to nobles. Who were these nobles? They were the relatives of the king, and we can say to the ruling class. The relatives to the ruling class or to the king are known as nobles. This is the second state. And what about the third state? Peasants, merchants and laborers. This state consists the maximum population percentage. क्योंकि जो किंग है या फिर उनके जो रिलेटिव्स हैं नोबल्स क्लास के, ये तो लिमिटेड होंगे, लेकिन मैक्सिमम क्राउड, मैक्सिमम पॉपुलेशन परसेंटेज किसका था? दोज हु वेर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, लेबर क्लास, मर्चेंट, लॉयर एट्सेट्रा. In this way we saw that the people of first and second state enjoyed the privilege based on birth. They never paid taxes. They were exempted by the burden of taxes. उनको अलग रखा गया था, उनके ऊपर टैक्स का कोई बर्डन नहीं था. Even then they were capable to pay. हालांकि however they were capable to pay.
yet they are free from paying taxes, burden of paying taxes. Now, the third state, which in which the poor people, the merchant laborers involved, they'll have to pay taxes, and they were have to serve the first and second स्टेट्स ऑफ द पीपल. साथ में उनको टैक्स तो पे करना ही पड़ता था, साथ में उनकी ड्यूटी क्या हुआ करती थी, दे हैव टू सर्व द पीपल ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट. फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को सर्विस देना, उनकी सेवा करना. इन फ्रांस देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस ऑल्सो. ठीक है, फ्रांस में अभी आप ये भी समझो कि कितने तरीके के टैक्सेस हुआ करते थे. Tithes, tally, these are the two kinds of taxes. Now thing is, what is tithes? Tithes were the taxes levied by the church, and this is the tax which was being imposed by church on third state. ये वो टैक्स था जो चर्च के द्वारा लगाया गया था किस पे? द पीपल, ऑन द पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट, लेबर, मर्चेंट और बाकी लोगों पे. एंड tally, tax to be paid directly to the state. There were several taxes also. ये ऐसा टैक्स था जो डायरेक्टली स्टेट्स को पे किया जाता था, और ऐसे बहुत सारे टैक्सेस थे इन दो के अलावा भी, बट प्रोमिनेंट यही दो थे. नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट वाज द रीज़न ऑफ एम्प्टी ट्रेजर. क्या रीज़न था एम्प्टी ट्रेजर का? मैंने आपको कहा भी था कि मैं आपको एक अलग से वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी. सेवरल पॉइंट्स यू कैन नोट डाउन दीज. लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर drained the resources. The reason of empty treasure was long year of war. Means, due to having dispute with Britain, France had to purchase the weapons at large scale, and so that his economy badly affected. क्योंकि ब्रिटेन से फाइट चल रहा था, फ्रांस का डिस्प्यूट चल रहा था, इसीलिए बहुत लंबे समय तक वेपन्स की परचेजिंग का बर्डन आया फ्रांस के ऊपर. और एक रीज़न ये भी था कि ट्रेजर जो था वो कंटिन्यूअसली एम्प्टी होता चला गया. द रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस वेर ड्रेन्ड आउट. वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज थे वो ख़त्म होते चले जा रहे थे. द सेकेंड पॉइंट इज मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट at the immense palace of Versailles. Actually, there was a huge palace of the king in Versailles. राजा का महल जो था वो बहुत ही बड़ा था, बड़ा ही विशाल था. The maintenance of such a big palace is very costly. इतने बड़े महल का एक्सपेंस को बेयर करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी. उनकी शान व शौकत, उनकी रॉयल्टी, उनके जो हैबिट्स थी, उसका जो मेंटेनेंस था. एक ये भी रीज़न था कि ट्रेजर जो था दैट वाज कंटिन्यूअसली बीइंग एम्प्टी. थर्ड पॉइंट इज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. कॉमन एनिमी ब्रिटेन. अमेरिका वॉज कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटेन. As we were colonized to Britain, America was also colonized by Britain. British make American their slaves. British ने क्या किया? Americans को अपना slave बना लिया. Britain was the enemy of France also. France का भी enemy था Britain, और America का भी था. Now, American raised their voice to free from British, and France supported them. France supported Americans. Why? Because दोनों के एनिमी कॉमन थे. ब्रिटेन जो था वो अमेरिका का भी एनिमी था, और फ्रांस का ऑलरेडी था ही. सो दैट फ्रांस हेल्प्ड अमेरिकन्स. नाउ इन दिस वॉर फ्रांस हेल्प्ड अमेरिका टू अटेन द फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स. Because Britain was the common enemy of both. When France was helping America economically, France will have to face pressure of 2 billion livres of debt. यानी करीब करीब 10 अरब लीवर वहाँ की करेंसी है. ठीक है,
का खर्च आ गया एक्स्ट्रा फ्रांस पे, क्योंकि फ्रांस जो था वो अमेरिका की ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उसको हेल्प कर रहा था, उसको वेपन्स दे रहा था और बाकी भी तरीके से। कंडीशन क्या थी, ऑलरेडी एम्प्टी ट्रेजर तो था ही, वॉर में इन्वॉल्व होने के कारण, अमेरिकन की हेल्प करने के कारण और ज़्यादा क्राइसिस आती चली गई। Livres was, you can note down, livre was the unit of currency in France. France has gifted the Statue of Liberty to America on being free from Britishers. Statue of Liberty आप जो अमेरिका में देखते हो, the French has gifted the Americans on the victory of the Britishers. ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है. Now, one more reason of empty treasure was high interest on loans. Large amount was spent on paying taxes. Actually, the reality was that France has already empty treasure. फ्रांस का ऑलरेडी खजाना बहुत खाली था, एंड फॉर हेल्पिंग अमेरिकन दे हैड टेकन लोन फ्रॉम अदर यूरोपियन कंट्रीज़. अमेरिकन की हेल्प करने के लिए फ्रांस ने क्या किया, अदर छोटी छोटी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनसे हेल्प लिया, उनसे लोन लिया, एंड हु इम्पोज द हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन्स ऑन फ्रांस. और जो ये यूरोपियन कंट्रीज़ थी इन्होंने क्या किया, हाई इंटरेस्ट लोन लगा दिया फ्रांस को जो लोन दिया उस पर. मतलब आप ये देखो कि बर्डन जो था वो कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा था. नाउ वन मोर पॉइंट, रेगुलर एक्सपेंसेस. कैसे रेगुलर, जो उनके नियमित खर्चे थे वो तो थे ही. कैसे खर्चे, आर्मी, कोर्ट एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस. टैक्स वॉज पेड ओनली बाय द थर्ड स्टेट. तीसरा रीज़न ये भी था कि टैक्सेस जो था वो कौन पेमेंट कर रहा था, थर्ड स्टेट हु वॉज ऑलरेडी पुअर. वो जो कि खुद कैपेबल नहीं थे वो टैक्स पे कर रहे थे, तो कितना ही टैक्स पे कर पाएंगे वो. द अदर टू स्टेट्स आर ओनली एंजॉइंग द रॉयल्टी. बाकी के जो स्टेट्स थे वो क्या कर रहे थे, वो अपनी रॉयल्टी को एंजॉय कर रहे थे. हालांकि हाउएवर दे वेर कैपेबल टू पे हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस. वो चाहते तो हाई टैक्सेस दे करके ट्रेजर को मेंटेन कर सकते थे, बट in their comparison the third state were able to pay only small taxes as they are in already poor condition. थर्ड स्टेट की तो ऑलरेडी हालत ख़राब थी, ठीक है. तो ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण ट्रेजर जो था वो ऑलरेडी एम्प्टी तो था ही और ज़्यादा खाली होता चला गया. नाउ we will discuss in the next video student about the subsistent crisis. For today this is enough. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द सबसिस्टेंट क्राइसिस, यानी द स्ट्रगल टू सर्वाइव के बारे में. क्या होता है सबसिस्टेंट क्राइसिस, क्या हुआ था इस दौरान, हम इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. फॉर टुडे एनफ, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ सेंड योर क्वेश्चन टू मी. डू द होमवर्क क्वेश्चन. थैंक यू. जय हिंद. गुड बाय.